Hello, students. We are going to read the story The Stick, that is written by Justice Surinder Singh. And this story teaches us the message that we should be kind to others and we should always pray the Almighty God. In this story, we are having two main characters. One is Bhagwan Das and the other one is Seth Jetumal. Now let's start reading the story. The first page of the story. Bhagwan Das sat near his small office table in the big business premises of his employer, Seth Jetumal, a tycoon of Kanpur, who was known for his treacherous greed for monetary gains to acquire which he would not hesitate to adopt any means, howsoever unscrupulous. So, in the very beginning, in the first line of the story, we get to know about our two main characters. One is Bhagwan Das. Bhagwan Das, who is an employee of another main character of the story, Seth Jetumal. So, in the beginning of the story, Bhagwan Das sat near his small office table. भगवान दास बैठा हुआ है कहाँ पे? अपने स्मॉल ऑफिस टेबल के पास इन द बिग बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ हिज एम्प्लॉयर सेठ जेतूमल. कहाँ पे है ये ऑफिस टेबल? इन द बिग बिजनेस प्रेमिसेस. प्रेमिसेस मतलब जगह, बिजनेस की जो जगह है बड़ी सी, ऑफ हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर की. एम्प्लॉयर जिसने उसको जॉब दी हुई है उसका नाम क्या है? सेठ जेतूमल. ए टाइकून ऑफ कानपुर. जो कौन है? कानपुर का टाइकून. कानपुर इज अ सिटी. Tycoon means a big businessman who was known for his treacherous greed for monetary gains. Who was known मतलब जिसको जाना जाता है. लोग उसके बारे में क्या जानते हैं? सेठ जेतूमल के बारे में. For his treacherous greed for monetary gains. Treacherous मतलब deceiving. Deceive मतलब to cheat others. He is having treacherous greed for monetary gains. Monetary means related to money. Gains. Gains मतलब कुछ भी पाना. To acquire anything. He wants to acquire money. And to acquire money, to gain money, he can indulge in any treacherous deeds. He is so greedy. To acquire, which he would not hesitate to adopt any means, whatsoever unscrupulous. And to acquire, to gain, वो धन पाने के लिए he would not hesitate. Hesitate means झिझकना. वो बिल्कुल नहीं झिझकेगा. To adopt any means, कि कोई भी तरीका वो अपनाए. Howsoever unscrupulous, वो तरीका चाहे जितना भी unscrupulous हो. Unscrupulous means dishonest. बेईमानी का कोई भी रास्ता वो अपनाता है पैसे लेने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए. तो इस तरीके से वो सेठ जेतूमल है, इस तरीके का है वो. The Seth had indeed built an empire mostly with his underhand deals in every trade. और सेठ ने अपना एम्पायर कैसे खड़ा किया है? ये जो उसका बड़ा सा बिजनेस एम्पायर है उसे टाइकून कहा जाता है, लेकिन ये बिजनेस एम्पायर बना कैसे? विद हिज अंडरहैंड डील्स इन एवरी ट्रेड. अंडरहैंड डील्स मतलब डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज, जो वो बेईमानी के काम करता है अपने हर ट्रेड में. कोई भी उसका ट्रेड हो, कोई भी व्यापार हो, उसमें वो बेईमानी करता है. ऐसे वो बहुत बड़ा सेठ बना है. बीइंग अ थॉरो एथीस्ट. और वो पूरी तरह से क्या है? एथीस्ट. एथीस्ट मतलब वन हु डजंट बिलीव इन गॉड. नास्तिक है वो. ही नेवर इवन थॉट ऑफ डूइंग अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट. वो कभी नहीं सोचता कि वो कोई ह्यूमैनिटेरियन एक्ट करे. ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता वाला. मानवता का वो कोई काम नहीं करता. नॉट टू टॉक ऑफ एनीथिंग रिलीजियस. तो हम धर्म की बात तो करें ही क्या. वो कोई मानवों के लिए भी काम नहीं करता, तो धर्म के लिए तो वो कुछ भी नहीं करता. रिलीजियस मतलब धार्मिक. इट वॉज हिज फर्म बिलीफ दैट मनी कुड बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड. उसका फर्म बिलीफ क्या है? बिलीफ मतलब विश्वास. फर्म मीन्स पक्का. पक्का विश्वास है कि जो पैसा है वो दुनिया में कुछ भी खरीद सकता है. सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ सेठ जेतूमल. We can say that he is a negative character in the story. Next para. भगवान दास was a petty clerk in the organization. अब भगवान दास के बारे में हमें पता चलेगा वो कौन है. He is a petty clerk. Petty means small. उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा मोटा क्लर्क है वो. He had been employed by the state on the recommendation of the superintendent in charge of a home for deserted children, where Bhagwan Das had spent his childhood till he grew up to be a young man fit to make a living on his own. तो यहाँ पे इस लाइन में हमें भगवान दास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या पता चली है?
that he is a deserted child. Deserted we can say orphan, जिसको उसके माँ बाप ने या तो छोड़ दिया है या फिर ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस ही इज़ नॉट हैविंग हिज पेरेंट्स। तो वो एक कह सकते हैं हम कि एक अनाथ आश्रम में रहता था, और अनाथ आश्रम का जो सुपरिंटेंडेंट इंचार्ज था, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, उसकी सिफारिश के ऊपर उसे नौकरी मिली थी सेठ जेतूमल के जहाँ, वेयर भगवान दास हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड टिल ही ग्रू अप टू बी अ यंग मैन। तो भगवान दास ने अपना सारा बचपन, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, बिताया था उस अनाथ आश्रम में, जब तक कि वो एक बड़ा आदमी नहीं बन गया, फिट टू मेक अ लिविंग इन अ जॉन, ताकि वो अपने आप कमाई कर सके। अ रियल एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑनेस्टी एंड डिलीजेंस। अब भगवान दास क्या है? रियल एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, और डिलीजेंस का। डिलीजेंस मतलब मेहनत का, हार्ड वर्क का। विच क्वालिटीज ही हैड एक्वायर्ड इन द होम। अब ये क्वालिटीज उसने कहाँ से सीखी हैं? उस अनाथ आश्रम से। होम यहाँ पे है वो ऑर्फनेज। He never felt embarrassed with the fact that he was a deserted child. उसे कभी भी एम्बेरसमेंट नहीं हुई थी, उसने कभी भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी कि उसे छोड़ दिया गया था, वो एक डेजर्टेड चाइल्ड था। एंड डिड नॉट नो हु हिज पेरेंट्स वर, उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन है, इस बात के लिए उसे कभी शर्मिंदगी नहीं होती थी। The spirit of the home had infused in him a strong conviction that every human being is an offspring of the supreme God, and it mattered little who his parents were in actual life. अब जो उस अनाथ आश्रम की स्पिरिट थी, दैट हैड इन्फ्यूज्ड इन, उसने उसमें एक चीज भर दी थी, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन भर दिया था। कन्विक्शन मतलब विश्वास, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग, के हर एक जो ह्यूमन है, मनुष्य है, इज एन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा है वो, ऑफ द सुप्रीम गॉड, उस परमात्मा का, ऑलमाइटी गॉड का। एंड इट मैटर्ड लिटिल, और इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हु हिज पेरेंट्स वर इन एक्चुअल लाइफ, के असल जिंदगी में उसके पेरेंट्स कौन हैं। Having no worldly attachments, he was always submerged in thought and action with Almighty. तो ऐसे हमें उसकी कोई वर्ल्डली अटैचमेंट नहीं थी, संसार में उसका कोई अटैचमेंट, कोई संबंध नहीं थे, वो हमेशा खोया रहता था, सबमर्ज होना, खोना, इन थॉट एंड एक्शन विद ऑलमाइटी, उस भगवान के विचारों में, एक्शंस में वो खोया रहता था। नो वंडर हिज थर्स्ट टू मीट और इवन टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ हिज क्रिएटर वाज इनसैटिएबल। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमेशा उसके मन में इच्छा होती थी कि उस क्रिएटर की, भगवान की, उसे एक झलक मिल जाए या वो उसे मिल पाए। ऑन मैनी ओकेजन्स he had lost count of his very being in his flight of divine thoughts. कई बार तो ऐसे डिवाइन थॉट्स में खोए हुए, ऐसे जो दैवीय विचार थे, डिवाइन मतलब दिव्य, ऐसे विचारों में कई बार उसे ये भी भूल जाता था कि वो कौन है, वो अपने आप को भूल जाता था। नेक्स्ट पैरा। The room in which the whole staff was working was a big one in the third story of the building, and the seat of Bhagwan Das faced a window which provided a bird's eye view of the city outside. अब हमें उस बिजनेस प्रेमिसेस के बारे में राइटर बता रहा है कि वो कमरा जिस पे सारा स्टाफ बैठ के काम कर रहा था, एक बड़ा कमरा था इन द थर्ड स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग। स्टोरी मतलब मंजिल, इसके स्पेलिंग देखो, स्टोरी के होते हैं STOREY, डैट मीन्स मंजिल। उस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के ऊपर ये कमरा था। एंड द सीट ऑफ भगवान दास फेस्ड अ विंडो, और जो भगवान दास की सीट थी उसके सामने एक विंडो थी, विच प्रोवाइडेड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी आउटसाइड, जिससे वो बाहर की सिटी का पूरा एक नज़ारा देख सकता था। बर्ड्स आई व्यू मतलब जैसे बर्ड्स स्काई में उड़ते हैं तो उन्हें सिटी का एक पूरा व्यू नज़र आता है, ऊपर से पंछी झात जिसको हम बोलते हैं, तो उसे वो पूरा सिटी का वहाँ से नज़ारा नज़र आता था। With a pen in his hand, Bhagwan Das had been scribbling something on a piece of paper lying in front of him. तो भगवान दास के हाथ में एक पेन था और उससे वो पेपर के ऊपर कुछ लिख रहा था। स्क्रिबलिंग मतलब नॉट इन अ गुड हैंड राइटिंग, ही वॉज राइटिंग समथिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर। द व्यू ऑफ द टाउन फ्रॉम द विंडो हैड कैरिड भगवान दास अवे फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड। तो ये जो उसे टाउन का नज़ारा नज़र आ रहा था उस विंडो से, उसने भगवान दास को मटेरियल वर्ल्ड से, वो उसको दूर ले गया, इस संसार से उसको दूर ले गया। एंड स्पिरिट सोर्ड हाई ओवर द टावरिंग बिल्डिंग्स एंड द लैंडस्केप, और उसकी जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, दैट स्टार्टेड सोरिंग, सोर मतलब उड़ना, हाई ओवर द टावरिंग बिल्डिंग्स, ऊंची मंजिलों के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर, और लैंडस्केप, जो लैंडस्केप थे मतलब धरती के सीन थे, उनके ऊपर वो, उसकी आत्मा उड़ने लगी।
Bhagwan Das did not even notice that his boss, the Seth, was standing just behind him. भगवान दास ने ये भी नोटिस नहीं किया कि उसका जो बॉस है, मालिक है, सेठ, उसके पीछे खड़ा था. बिहाइंड मतलब पीछे खड़े होना. एंड हैड बिन वॉचिंग हिम फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ देर से उसको देख रहा था. आफ्टर अ लिटिल वाइल, कुछ देर के बाद, द सेठ शुक भगवान दास फ्रॉम हिज शोल्डर. सेठ ने भगवान दास को कंधे से हिलाया. एंड ही स्टूड अप विद अ जोल्ट व्हेन ही सॉ हिज एम्प्लॉयर. और वो एक जोल्ट के साथ उठा. जोल्ट मतलब झटके के साथ उठा जब उसने अपने एम्प्लॉयर को देखा. अनोयंस रिट लार्ज ऑन हिज फेस. अनोयंस मतलब नाराजगी. उसके चेहरे पर साफ नाराजगी नजर आ रही थी. रिट मतलब रिटन, लार्ज इट वॉज विजिबल. द सेठ picked up the piece of paper lying in front of भगवान दास. सेठ ने वो पेपर उठाया जिसके ऊपर हमें पीछे बताया गया कि भगवान दास कुछ लिख रहा था. उसने उसको उठाया एंड रेड इट, और इसे पढ़ा. इट रैन. उसमें क्या लिखा था? हरी हरी हरी, ओ भगवान, माई बिलवड, हाउ लॉन्ग हैज दाई सर्वेंट रिपीटेड दाई नेम. भगवान का नाम लिख रहा है वो, भगवान को प्रेयर कर रहा है और कहता है, हे भगवान, कब से मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ. आई एम योर सर्वेंट. दाई मतलब योर. दाई सर्वेंट इज रिपीटिंग योर नेम. मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ. So with this, the first page of the story ends. The next part of the story will be discussed in next videos. The links of those videos are given in the description box. Go to that. Thank you.